Hello my dear students, today we are going to finish the question answer of this chapter which I already been discussed on 20th of July, right? In our last class we have read this chapter, okay, and took the word meanings and all the reading concept from this chapter, and today now we will do the question answers and the book exercises from this chapter. So let's start. Before we start, we need to put a classwork date of today, which is 30th July 2020, the chapter number, which is chapter 6, and the chapter name, which is The Plant of Wonderland. Yes, and after this we will start the question answers. Now our first question is from this chapter: who visited the court of King Krishnadev Rai? As you know, there was a stranger who visited the court of King Krishnadev Rai, and his name was Somappa. So the answer will be Somappa, who visited the court of King Krishnadev Rai. So we will write the answer like this, that a stranger named Somappa visited the court of King Krishnadev Rai. Right? Very short and simple. You just need to remember that a stranger named Somappa. This particular part will be remembered, and the rest part I have taken from the question. That when he is asking, the question is asking for who, and I have written a stranger named Somappa. So answer of who is a stranger named Somappa, and the rest part is visited the court of King Krishnadev Rai. So here is the next part: visited the court of King Krishnadev Rai. Now our next question is, what did Somappa bring with him? The Hindi meaning will be Somappa अपने साथ क्या लाया था? What did Somappa bring? Bring मतलब लाना. Somappa क्या लाया था अपने साथ? Now you see here, my dear students, the answer will be found here, that when Somappa came, he said, I have a unique gift of Wonderland, and before some days Blue Fairy come to me. She gave me a multicolored plant, and this particular multicolored plant given by Somappa to the king. Somappa ने king को वो multicolored plant दिया था, लाया था. वो क्या लाया था? Multicolored plant, right? Now this is the question, and I am going to write the answer. The answer will be written like this, that Somappa brought. Now you would say, sir, brought कहाँ से आया? See, what did का मतलब होता है in past tense someone is asking to you, okay, in past tense. So in answer we change this verb form of bring into brought, right? So the sense of sentence will come, मतलब sentence थोड़ा sense में यानी अच्छे से सुनाई दे. Now how can I write this? Somappa brought a multi-colored plant with him, right? Very short, very simple, and a correct answer. Somappa, what did Somappa bring with him? Somappa brought a multicolored plant with him. Now coming to the next question, which is, who disclosed the secret of multicolored plant? Again, who disclosed? Disclose का मीनिंग मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया है. आई हैव गिवन यू द मीनिंग ऑन स्क्रीन. स्क्रीन जब चलता है, मेरा वीडियो जब चलता है, तो उसमें आपको मीनिंग सुनाई देता है, दिखाई भी देता है. डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, या आप बोल सकते हो राज की बात बता देना, है ना. नाउ द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब रहस्य, राज जिसको आप बोलते हो, ऑफ द मल्टीकलर्ड प्लांट. तो मीनिंग क्या निकला? हु का मतलब कौन. कौन डिस्क्लोज किया मल्टी कलर्ड प्लांट का सीक्रेट, राइट? कौन डिस्क्लोज किया था? You know that. We will take it from the chapter. Now see here,
द डायरेक्ट आंसर कैनॉट बी फाउंड फ्रॉम द चैप्टर। आप सोचो कि सर डायरेक्टली कोई नेम रहेगा, ऐसा नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड हु डिड इट, किसने ये किया था, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आपको पता चल जाएगा। सी हियर, तेनाली रमन, तेनाली रमन इंडिकेटेड अ कोटियर एंड तेनाली रमन स्टार्टेड पोरिंग वाटर ऑन प्लांट, है ना। उसने एक कोटियर को बुलाया, उसने क्या किया, पानी डालना शुरू किया। द कलर ऑन द लीफ मिक्स विथ वाटर, दे बिकम डिस्कलर। और पता चल गया कि वहां पे वो जो प्लांट लाया था सोमप्पा, इट इज अ फेक प्लांट, इट इज अ डुप्लीकेट प्लांट। फेक डुप्लीकेट इसका मतलब होता है नकली, नकली है इसीलिए उसका कलर छूट गया। सो किसने ये राज बताया उस मल्टी कलर्ड प्लांट का, दिस पर्सन नेम तेनाली रमन। सो आंसर विल बी टेकन एज ए नेम ऑफ तेनाली रमन। Now how can we write the answer is, the answer is asking for who, so we will give the name only and the rest part will be the same for the question। मतलब सिर्फ नेम डालेंगे और बाकी का पार्ट उसमें ऐड कर देंगे। we will write तेनाली रमन disclosed the secret of the multi colored plant। okay, so I have given the answer of who का आंसर मैंने दे दिया तेनाली रमन and the rest part will be same as copied, disclose the secret of multicolored plant। you see, तेनाली रमन disclose the secret of multicolored, who disclosed the secret of multicolored plant, तेनाली रमन disclosed the secret of the multicolored plant, full stop, right? Now see the next question, question number D, why did Somappa color the leaves? Again, why did Somappa, सोमप्पा ने कलर द लीव्स यानी उसने पत्तों पे कलर क्यों दिया था, राइट? क्यों, ऐसा क्यों, रीजन है ना, यू नीड टू गिव अ रीजन ओवर हियर कि सोमप्पा ने पत्तों पे कलर क्यों दिया था। नाउ सी है माय डियर स्टूडेंट्स, हियर द मेन थिंग हियर इज दैट सोमप्पा गॉट गिल्टी, राइट? सोमप्पा को पता चल गया कि सोमप्पा ने गलती की है। Here तेनाली रमन said my lord Somappa is not guilty for it, right? इस तरह की बातें हो रही थी, right? Now bowing down the head Somappa accepted his guilt। उसने बाद सोमप्पा ने क्या किया था, अपनी गलती मान ली, right? He said I beg your pardon, I have colored these leaves myself। मैंने खुद ही कलर किया था। I have done it to get more and more reward। मैंने ये क्यों किया, I have done, मैंने ये किया, it to get more, क्या करने के लिए, टू गेट मोर एंड मोर रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, मुझे कुछ ज्यादा इनाम वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए मैंने ये काम किया, राइट? सो दिस इज द आंसर वी विल टेक फ्रॉम हियर। नाउ वी विल राइट द आंसर दैट सोमप्पा colored the leaves to get more and more reward। Again, very simple answer is it, सोमप्पा colored the leaves to get more and more reward। मैंने उससे से ज्यादा उसको इनाम मिल जाए, इस कारण से, इसी रीजन से उसने पत्तों पे कलर लगाया था, राइट? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग गिव टू तेनाली रमन? व्हाट डिड द किंग गिव टू, गिव का मतलब देना, किसको, तेनाली रमन को। किंग ने तेनाली रमन को क्या दिया, राइट? व्हाट डिड द किंग गिव टू तेनाली रमन? So my dear student, this is the last question and the answer is so simple that the king gave Tenali Raman 100 gold coins, right? You can find the answer here. See, I am circling it. The king gave Tenali Raman 100 gold coins. So this is the right answer, right? The king gave Tenali Raman 100
100 gold coins, right? Now my dear students, we have completed the question answers of this chapter, all of them, right? Now we will start the book exercises from exercise number 2. Before we start, we should write down or put a date over here, which is the classwork date of today, and today's date is 30th July. 30 जुलाई आज का डेट है. You should put here. See my finger? Put here a date of 30th July, right? Now, the book exercise says match column A with column B, right? So here is the things which under column A and here is the things which is under column B. Column A में कुछ चीजें हैं, column B में कुछ चीजें हैं, and you know what you will do? You will match with the correct word. Now take one word one by one, right? Now king. King will be matched here with courtier, right? So king will be the answer of courtier. You should write a number over here or you can match with it like this. आप मैच भी कर सकते हो और नंबर भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट, बट आई वुड सजेस्ट लाइनिंग्स मत करो. इट विल डिस्ट्रैक्ट यू. कोई भी लाइन किसी भी लाइन से मिक्स हो जाएगा. बेटर यू राइट अ क्वेश्चन नंबर रिलेट टू द आंसर. यानी 4 नंबर किसका आंसर है? ए नंबर का. सो यू शुड पुट ए ओवर हियर, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टीचर. Teacher will be connected to the student. So B number over here. Lawyer. Lawyer will be connected to client. Now here C number. Shopkeeper यानी दुकानदार. दुकानदार तो कस्टमर देखता है, right? So shopkeeper will be the right answer for answer 6, customer. Now again driver. Driver will connected to the passenger. Driver जो गाड़ी चलाता है वो पैसेंजर लेता है ना. So driver will be connected to पैसेंजर. एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर. एंड यू नो एक ही बचा हुआ है एंड इट इज करेक्ट आंसर. डॉक्टर किसको देखता है? पेशेंट को. सो डॉक्टर विल बी कनेक्टेड विथ पेशेंट. सो द आंसर्स आर कंप्लीटेड ओवर हियर. चूज अ पेंसिल, सॉरी, पुट अ पेंसिल एंड राइट डाउन विथ पेंसिल ओनली. ओके, डू नॉट यूज पेन. ओके, योर बुक विल बी डर्टी. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज इन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 3. Make opposite by adding dis, 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 un, un or im. Now why this is given? ये दिया हुआ क्यों है? क्योंकि here are some words जिसको हम dis, un and im add करके opposite word में convert करेंगे, right? Now see here, close. Close के लिए suitable word होगा dis. इससे जो word बनेगा, the word will disclose and this word is from the chapter also. Okay, next one is necessary. So यहां से कौन सा वाला यूज करेंगे? I will tell you. You will use un. We will take un and write over here. Un write over here and add necessary. So it will become unnecessary. You have often heard this sound. Oh sorry, heard this word. आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि unnecessary बोला जाता है. नेसेसरी का मतलब होता है जरूरत, अननेसेसरी का मतलब जिसकी जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. ऑर्डर विल बिकम फ्रॉम डिस. आंसर विल बी डिसऑर्डर. अगेन पॉसिबल. पॉसिबल का ऑपोजिट क्या होता है? आई एम ऐड करेंगे. इम्पॉसिबल. आई एम पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल. नाउ अगेन कलर. कलर कैसे होगा? डिसकलर. रिमेंबर तेनालीरामन pour water on the plant and the plant color is discolored, right? So the correct word is discolored. Again known. known के लिए you यूज करेंगे. unknown. known का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं. unknown का मतलब जिसको नहीं जानते हैं. सोमप्पा वॉज अननोन टू किंग कृष्णदेव राय, राइट? सो नोन का उल्टा क्या होगा? अननोन. लाइक. लाइक का उल्टा डिसलाइक. dis विल बी यूज्ड हियर. डिसलाइक. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है बाबू कि इसमें सब में dis ही यूज करना है. ऐसा नहीं है. कोइंसिडेंटली वी हैव यूज्ड हियर, जो कि करेक्ट भी है, बट समहाउ हर जगह dis इसी कॉलम में यूज हो ये जरूरी नहीं है. नाउ सी हियर, एक्सपेक्टेड. यहां पे हम करेंगे अनएक्सपेक्टेड. द करेक्ट वर्ड विल बी अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड हम कहते हैं उसको जिसमें हमें कुछ उम्मीद या आशा होती है. अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी हमें उम्मीद ही ना हो. ठीक है. मोरल.
ठीक है। मोरल, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आई एम इमोरल, मॉरल इमोरल, राइट। देखो डिस नहीं लगा ना, राइट। ना मॉर्टल, मॉर्टल के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे होगा इमॉर्टल, IMMORTAL, immortal. So these are the words which are opposite by adding dis, un, im. जो जहां पे जरूरत है, what is the suitable for the word I have used, मैंने यूज किया, ठीक है। चलो, now come to the exercise number 4. Now see here, exercise number 4 says use the magic wand to complete the following. वैंड इसको बोलते हैं, पता है, जादू की छड़ी को हम लोग वैंड बोलते हैं, मैजिक वैंड। जादू की छड़ी होती है ना, देखो यहाँ पे जादू की छड़ी है, सो यू शुड यूज इट, राइट। नाउ सी, एज ब्लैक एज, मजाक कर रहा था, आप लोग देखो बाबू, एज ब्लैक एज मतलब कौन सा चीज ब्लैक है, सी द वर्ड्स हियर एंड यूज द सुटेबल वर्ड विद द कलर। नाउ सी, एज ब्लैक एज, तो ब्लैक तो कोल होता है, कोल का मतलब कोयला, सो एज ब्लैक एज कोल, इट इज द राइट आंसर। एज ग्रीन एज, ग्रीन कौन सा मिलेगा, चेक चेक चेक, ग्रास, आई हैव फाउंड, मैंने जादू की छड़ी यूज की एंड आई हैव फाउंड ग्रास, राइट। सो एज ग्रीन एज ग्रास। एज रेड एज, रेड मतलब लाल, है ना, सो एज रेड एज, अब पता करो तो इसमें से रेड कौन सा होता है, ब्लड, खून का रंग क्या होता है, लाल, है ना, ब्लड, ब्लड को खून बोलते हैं। नाउ द एज रेड एज, द आंसर विल बी ब्लड, BLOOD। एज वाइट एज, वाइट कौन सा होता है, C फायर, डॉग, स्नो, ग्रास, हनी, विच वन विल बी द राइट आंसर, डिड यू गेस, नो, सी द आंसर, स्नो। स्नो मतलब जो बर्फ गिरता है ना, जैसे कश्मीर वगैरह में या ठंडी जगह पे जब बर्फ पड़ रही होती है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में स्नो बोलते हैं, स्नोफॉल हो रहा है, मतलब बर्फ की बारिश हो रही है, राइट। तो वो पूरा वाइट होता है, सो एज वाइट एज स्नो, राइट। नाउ अगेन, एज ब्रेव एज, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर होना, कौन बहादुर है, देखते हैं, ब्लड, कोल, फेदर, बी, लायन, हनी, ग्रास, सॉरी स्नो, डॉग, फायर, इसमें से बहादुर कौन सा होता है, लायन होता है ना, लायन सब पे हमला करता है, लायन राजा होता है ना, सो एज ब्रेव एज ए लायन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एज बिजी एज, अब बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त रहना, कोई ना कोई काम में आप पड़े हुए हो, तो दैट इज यू आर बिजी, सो एज बिजी एज, कौन इसमें से बिजी है, देखो तो, ब्लड, कोल, फेदर, बी, लायन, कौन बिजी होता है, देखो बिजी, बी हमेशा बिजी है, खाली जाके शहद चुनती है ना, हमेशा यहां से वहां उड़ती रहती है, तो हमेशा बिजी रहती है, सो बी से बिजी हो गया, राइट, बी। एज फेथफुल एज अ, फेथफुल का मतलब होता है जो वफादार हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, सो सबसे फेथफुल कौन होता है, जिस पे आप भरोसा करते हो, है ना, सी, ब्लड, कोल, फेदर, बी, लायन, फायर, डॉग, देखो व्हाट आई फाउंड, डॉग, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो उस पे आप बहुत भरोसा करते हो, है ना, सो डॉग विल बी द आंसर। एज स्वीट एज, सबसे मीठा कौन है, स्वीट कौन है, चेक करते हैं, ब्लड, नो 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 नो, कोल, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बी, लायन, ये सब मीठे हैं, बिल्कुल नहीं, चेक करते हैं, फायर, डॉग, फायर मतलब आग होता है, राइट, डॉग, स्नो, ग्रास, हनी, सो व्हाट विल बी द आंसर, हनी, सी हियर, हनी इज द राइट आंसर फॉर स्वीटनेस, हनी। नाउ कम टू दिस पार्ट where you can found as light as a. now light, light यानी थोड़ा उजला कौन होता है, चेक करते हैं, feather, feather पंख को बोलते हैं, देखिएगा पंख जो होता है थोड़ा उजला होता है, so as light as a feather, feather is the right answer। as hot as, गरम, as hot as कौन ज्यादा गर्म होता है, गर्म तो एक ही चीज है, फायर, आग लगती है तो बहुत गर्मी लगती है ना, so as hot as fire। so these are all the answers given here। you should take your pencil and write down one by one। remember be careful with the spelling, spelling आप ठीक से लिखोगे, and don't worry, you don't need to do any hard work over here, आपको spelling easily यहाँ से find हो जाएगा, right। you should pick a word from here as I write here and उसको आप लिखो अच्छे से, right। now come to this exercise, exercise number 5, fill in the blanks with the words given in the bracket। now here are fill in the blanks question, खाली जगह भरना है, right। लेकिन वी हैव सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास,
वी जस्ट नीड टू पिक द राइट वर्ड. हम लोग क्या करेंगे, कोई राइट वर्ड उठाएंगे एंड वी विल फिल द ब्लैंक्स ओवर हियर. नाउ सी, आई हैव डैश द मैच. बताओ तो वन लगेगा या वोन लगेगा? आई हैव वन द मैच और वोन द मैच. वन इज द वोन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विन. विन जिसका मतलब होता है जीत जाना. तो मैच जीतते हो ना, तो वी विल राइट WON. नाउ ही इज डैश स्लो द रन. ही इज डैश स्लो टू रन. टू और TOO टू, यहां पे होगा टू. ठीक है. ही इज टू स्लो, वो बहुत स्लो है दौड़ने के लिए, यानी बहुत स्लो दौड़ता है. राइट. नाउ अगेन, यू आर डैश टू मी. अगेन, यू आर डैश टू मी. डियर और डियर, तुम मेरे लिए हिरन हो. डियर का मतलब तो हिरन होता है ना, तो तुम मेरे लिए हिरन तो नहीं हो, बट डियर बोल सकते हैं. डियर का मतलब होता है प्यारा ही होना, यानी प्यारा होना. सो क्या बोलोगे, हिरन हो या प्यारा हो? आप बोलोगे यू आर डियर टू मी. DEAR, डियर मतलब प्यारा. द डैश साइंस इन द स्काई. साइंस का मतलब होता है चमकना, स्काई मतलब आकाश या आसमान. सो व्हाट इज शाइनिंग? क्या शाइन करता है? सन बेटा या फिर सूरज? सन, SUN मीन्स सूरज, सूर्य जिसको बोलते हैं. सन मीन्स बेटे या बेटा, जो आप बोलो. सो सन में यहाँ पे कौन सा वाला सन आएगा? SUN वाला. राइट. सो द सन शाइन्स इन द स्काई. सूरज आकाश में. आपका बेटा या किसी का बेटा आकाश में जाके चमकता थोड़ी है. ठीक है. वी डैश विथ आवर आईज. वी डैश विथ आवर आईज, हम लोग क्या करते हैं आंखों से? SEE का मतलब होता है देखना, एंड SEE का मतलब होता है समुंदर. अब बोलो, हम अपने आंखों में समुंदर ले लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना. सो द राइट वर्ड विल बी SEEC, यानी SEE. राइट. वी सी विथ आवर आईज, हम आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं. द हॉर्स हैज ए बुशी. सॉरी, द हॉर्स हैज ए बुशी. बुशी मतलब होता है रोआदार. रोए होते हैं ना, जैसे बॉडी में रोए होते हैं. ठीक है. सो द हॉर्स हैज ए बुशी. बुशी क्या है उसके पास? रों वाला क्या रहता है उसके पास? टेल या टेल? टेल का मतलब तो बोलना होता है और टेल का मतलब पूंछ. तो अब बताओ, हॉर्स के पास बोलने वाला रोआ होता है या फिर पूंछ होती है? ऑब्वियसली पूंछ होती है ना. पूंछ का इंग्लिश क्या है? टेल. सो द हॉर्स हैज अ बुशी टेल. सी द आंसर, द हॉर्स हैज अ बुशी टेल. राइट. नाउ द लास्ट वन इज ही केम डैश. हेयर और हेयर? हेयर और हेयर, जो आप बोलो. हेयर का मतलब होता है बाल, जो सर पे बाल होते हैं, या फिर आपके बदन पे भी बाल है तो वो भी हेयर ही होगा. नाउ हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ. सो ही केम हियर होगा या हेयर होगा? ऑब्वियसली वो यहाँ आया, यानी ही केम हियर. HERE वाला आंसर होगा. राइट. सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव कंप्लीटेड. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा टिक भी कर देते हैं. फर्स्ट वाले का आंसर वॉन, यू विल डू एज आई डू. जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करो. सेकंड वाले का ये वाला आंसर है, तो आप यहाँ टिक करके रखो. डियर, डियर यहाँ पे होगा. सन यहाँ पे. सी फ्रॉम हेयर. टिल फ्रॉम हेयर. एंड द लास्ट वन इज हेयर फ्रॉम हेयर. ठीक है. ऐसे आप आंसर को टिक करके रखो और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो. राइट. Now come to the next page, my dear students, page number 34, where you can find more questions under exercise number 5. Yes, exercise number 5 खत्म नहीं हुआ, उसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं जो नेक्स्ट पेज में है. यू कैन फ्लिप योर पेज, पेज को चेंज कीजिए और देखिए HIJ 3 क्वेश्चन और है फिल इन द ब्लैंक्स के. चेक विच इज द राइट आंसर फॉर फिल इन द ब्लैंक. सी हियर, यू डैश द फैक्ट. फैक्ट का मतलब सच्चाई होता है, यानी अगर तुम सच के बारे में है तो आप क्या बोलोगे? नो या नो. नो का मतलब जानना होता है. द राइट आंसर विल बी KNOW. सो यू नो द फैक्ट. आंसर विल बी नो. राइट. यू नो द फैक्ट. नाउ I नंबर, द डैश इज ग्रेजिंग. ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना. कौन चरता है? वैसे जानवर, दोज एनिमल्स हु फीड ऑन ग्रास प्लांट्स, है ना, जो घास पेड़ पौधे खाते हैं. भैया देखते हैं कौन खाते हैं? शीप या शिप? विच इज द राइट आंसर? भेड़ बकरी या शिप जहाज? जहाज घास खाती है? ऐसा तो नहीं है. राइट. सो द राइट आंसर विल बी शिप. द शिप इज ग्रेजिंग. द शिप इज ग्रेजिंग मतलब जो भेड़ है या बकरी है, जो भी आप बोलो, वो आपका घास चर रही है. आई एम डैश. राइट और राइट?
राइट का मतलब होता है सही होना, यानी अगर मैं किसी बात पे ठीक हूं, आई एम राइट, RIGHT। बट राइट का मतलब लिखना होता है, मैं लिखता हूं, उसके लिए आई एम राइट नहीं लिखते हैं, या तो आई एम राइटिंग लिखते हैं, ओके, या आई राइट लिखते हैं। तो द सुटेबल वर्ड विल बी RIGHT। सो आई एम राइट इज द right answer. I am right is the right answer, right? Now come to the last part of the exercise, which is 6th number, make sentences. Now here this is a very perfect question to give in the homework, right? क्या करना है, टेक दिस वर्ड फेरी, फेरी का मतलब बताए है ना, परी होती है। सो चेक द बुक, चेक द चैप्टर, द प्लांट ऑफ वंडरलैंड चैप्टर विल हैव दीज वर्ड्स अंडर द चैप्टर, राइट? सो वहां पे करना क्या है, यू शुड पिक वन वर्ड और उससे देखो कहां से क्या सेंटेंस बनेगा, एंड यू विल डू द सेंटेंसेस फ्रॉम हियर। सो वी विल एंड दिस चैप्टर फ्रॉम सॉरी हियर, where you can find a homework from here, you can do it, okay? Now my dear students, here is exercise number 7 also, and here you can find in the book that here is a tree which is a family tree. You can write it by yourself, अपने आप से बना सकते हो। You should write your members name over these circles, इन circles पे आप members के नाम लिखो, right, and do it. So it is a creative work, not related to the chapter, but it's very interesting to do, right? So you should do question number 6 and 7 by yourself, अपने आप से बनाओ question number 6 and 7, and I am ending this chapter over here. All the question answers, all the book exercises, you should write very carefully with the good handwriting, and there should be no spelling mistakes, as I have already did it in very carefully manner, right? So आप भी उसी तरह से नोट करोगे, ठीक है? Now we are ending this video lesson today.